So hello everyone, this video is really important for all the CA Inter students and the students those who have cleared their CA Inter examinations. In this video, I'm going to be discussing about where to start your articleship from, either from a small size firm or a mid size firm or from a big four. At the end of a video, I have a small gift for you where I'm going to be sharing you this list of companies which you could see it out on the screen, which are the टॉप सीए फॉर्म्स अदर देन बिग फोर्स विच यू कैन इजीली अप्लाई. तो काफी सारी फॉर्म्स है, मोर देन 120 फॉर्म्स विच आते हैं which I am going to be sharing with you guys. So please stay till the end and don't forget to subscribe this channel because here in this channel I am going to be uploading lot of interview related contents which is going to be helping you to get placing in your dream companies out. Now सबसे पहले अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन अ बिग फोर फर्म विद अ मिड साइज फर्म. कहाँ से आर्टिकलशिप स्टार्ट करें, ये डिसीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज here you're going to be working for 2 years of your journey, and one of the most important thing is even if after completing that, that is going to be deciding as a benchmark for you guys in the next upcoming part of your journey. इसके बेसिस पे आपको जॉब मिलेगी, इसके बेसिस पे many of you might be thinking of doing an industrial training. So let us first understand from where to start your journey from. I being a right person to guide you out here. Reason being, I started my articleship from Kirtan and Pandit, which was a mid-sized firm, and from then I transferred and taken moved to EY in a statutory audit domain. So मेरे को दोनों फॉर्म का एक्सपोजर है, तो आई एम द राइट पर्सन टू गाइड यू आउट. Now let us first understand between two major differentiation what you should know before you are starting your journey. First is the specialization versus generalist approach. So when you start your articleship from a big four, big six firm, आप जब भी जाते हो तो वहां पे आपको एक स्पेशलाइजेशन मिलेगा. मतलब क्या, यू विल ऑलवेज फाइंड अ डिपार्टमेंट्स व्हिच आर देयर. सर कौन कौन से डिपार्टमेंट्स मिलेंगे अगर आप बिग फोर्स में जाओगे? तो सबसे पहले मिलेगा स्टार्ट ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, फॉरेंसिक्स बहुत रेयरली मिलेगा, फ्यू ऑफ द बिग फोर्स और बिग सिक्स फर्म्स ऑफर्स. देन एफडीडी वेरी रेयरली, बीडीओ ही मैंने देखा है कि अभी ऑफर करता है एफडीडी में आर्टिकलशिप. Then investment banking and valuation, very few of the firms will be offering this out. Direct tax and international tax, transfer pricing, M&A tax and IDT and subsidy size is one of the domain where it is lot of hirings are going. तो अगर आप बिग फोर बिग सिक्स में जाएंगे तो आपको काफी ज्यादा डिपार्टमेंटलाइजेशन मिलेगा, right? That is one thing. Just for an update for the people those who are watching this, statutory audit is further divided into subdivisions, which is TMT, ISC and FS, right? TMT is telecommunication, media and technology side. ISC is more towards an infrastructure and FS is a financial services. तो इसमें भी सब डिविजन्स रहते हैं डिपेंडिंग ऑन सेक्टर्स यू विल बी प्लॉटेड आउट इनटू. तो एक स्पेशलाइजेशन आपको मिलेगा जब आप अगर आप बिग फोर बिग सिक्स फर्म्स टारगेट करते हैं, विच इज देयर. एंड व्हेन यू मूव टू अ मिड साइज फर्म, देखो मिड साइज फर्म में क्या होता है, एक जर्नलिस्ट होता है, मतलब ऑल टाइप ऑफ वर्क इज सपोज टू बी डन. यू हैव टू डू ऑल द टाइप्स ऑफ वर्क, मतलब जीएसटी रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न, टीडीएस फाइलिंग, सब कुछ आपको करना पड़ेगा. तो आपको काफी ज्यादा डोमेन्स का एक्सपोजर मिल जाएगा. दैट इज वन. देयर आर मल्टीपल डिपार्टमेंट्स एंड डोमेन्स व्हिच यू विल बी एबल टू फाइंड इट आउट इन अ mid-sized firm, which is there depending on a type of firm, depending on a companies you are joining in, राइट. काफी सारे आपको बैंकिंग रिलेटेड वर्क, क्योंकि बैंक ऑडिट्स वगैरह जनरली यहाँ पे आपको थोड़े से ज्यादा दिख जाएंगे, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स थोड़े ज्यादा दिख जाएंगे विच इज देयर. तो ये सब चीजें आपको यू विल बी एबल टू फाइंड इट आउट बिटवीन अ मिड साइज फर्म एंड स्मॉल फर्म. Now coming to the corporate exposure, now one thing you have to understand here is when you are starting your journey from a big four, big fours में most of the clients are bigger, most of the clients will be listed or bigger companies or bigger giants, और those companies those who have their holding entity outside India, राइट. तो काफी सारी कंपनीज जो रहेगी वो एमएनसी क्लाइंट रहेगा. तो आपको जो ग्लोबल असाइनमेंट, ग्लोबल एक्सपोजर, लिस्टेड कंपनीज, लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स काफी ज्यादा मिल जाएगा. जबकि मिड साइज फॉर्म में ये थोड़ा सा आपको कम मिलेगा बिकॉज लॉट ऑफ कंपनीज एंड फॉर्म्स विल बी अ स्मॉलर क्लाइंट्स, राइट. छोटे छोटे क्लाइंट्स रहेंगे यार, कोई किराने वाला, कोई नॉर्मल क्लाइंट्स रहेगा, विच इज देयर. तो डिपेंडिंग ऑन द स्टफ, राइट, यू हैव टू डिसाइड कि आपको कौन सा कॉर्पोरेट और स्केल और एक्सपोजर में जाना है. अब देखिए काफी सारी चीजें आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हो. एक होती है सबसे बड़ी जो होती है बिग फोर फर्म्स, फिर उसके बाद आती है कि टॉप मिड साइज फर्म्स, राइट. काफी सारे मिड साइज फर्म्स हैं जिसमें भी डिपार्टमेंट्स रहेगा, बट राइट एकदम ही ज्यादा बिग फोर के लेवल का नहीं है, बट यस दे आर टॉप मिड साइज फर्म्स चाहते हैं. इसके अलावा कुछ रहेगी फिर मिड साइज फर्म्स, फिर कुछ रहेगी आपकी स्मॉल फर्म्स और बुटीक फर्म्स चाहते हैं, राइट. तो आपको डिसाइड करना है इन विच पार्ट ऑफ द फनल यू थिंक यू आर गेटिंग योरसेल्फ फिट. Okay. Yes. Now moving to the next, which is an interview process. Up now, very interesting part, right? The interview process of the Big Four is very structurized, which is there. Now, I would ideally recommend, right, if you have a good reference, you should ask your reference to push your CVs if he or she is in your Big Four. आप उनके थ्रू अप्लाई करिए, because when you apply through reference, you might get an edge. एक छोटा सा आपको edge मिल जाएगा. मिड साइज फर्म में देखो इंटरव्यू प्रोसेस ऐसे स्ट्रीमलाइन इतना नहीं होता, डिपेंडिंग ऑन कंपनी और अप्लाइंग फॉर सिंपल प्रोसेस रहेगा. डायरेक्ट इंटरव्यू राउंड, फ्यू राउंड्स रहेंगे, एक या दो राउंड रहेंगे, आपको सिर्फ सेलेक्ट कर लिया जाएगा. बट बिग फोर डिपेंडिंग ऑन बिग फोर यू अप्लाइंग फॉर, सम बिग फोर हैव अ टेस्ट प्रोसेस, सम बिग फोर हैव
HR questions, technical questions, which is there. तो एक series of steps and the processes which are created for you guys when you are appearing for a Big Four interviews. इसके लिए मैं एक separate detailed video आपके लिए बना के रखूंगा, तो आप इन्हें अभी तक अरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए बड़े भाई के चैनल को सब्सक्राइब, so that you get an edge. अब आपके लिए since we are discussing about an interview process, एक छोटा सा आपके लिए काम किया गया है. आप एक प्यारी सी वेबसाइट पे जाइए tools.cmonk.com. This website is going to be helping you to prepare for your interviews very well. एक बहुत शानदार सी चीज भी दे देता हूं, अगर आपके रेज्यूमे में कुछ चीजें मिसिंग है तो यू कैन ऑल्सो इनकॉर्पोरेट इट सम टाइपिंग सर्टिफिकेट. और सबसे शानदार चीज, जैसे आप लॉगिन करेंगे आपको 50 कॉइन्स मिलेंगे, प्रोफाइल कंप्लीट करेंगे 50 कॉइन्स और मिल जाएंगे, तो आप टाइपिंग स्पीड जो सर्टिफिकेट है फ्री में ले सकते हैं. राइट, स्टार्ट प्रैक्टिस पे करेंगे, टाइपिंग करेंगे. राइट, आप प्रैक्टिस स्टार्ट करिए. आपने जैसे ही ये कंप्लीट किया, अब टाइमर भी डिसाइड करते हैं कि मेरे को कितनी देर का करना है, क्या करना है. राइट, पंक्चुएशन वाइज करना है तो पंक्चुएशन वाइज, नॉर्मल टाइपिंग करना है तो नॉर्मल टाइपिंग, है ना. तो जैसे आप चाहिए उसको आप टाइपिंग को कर दीजिए. राइट, और जैसे आप इसको कंप्लीट करेंगे, जैसे आप इसको कंप्लीट करेंगे गाइस, आपको एक शानदार सा सर्टिफिकेट मिल जाएगा यहाँ पे. राइट, एक शानदार सा सर्टिफिकेट मिल जाएगा, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं. राइट, यू कैन डाउनलोड द सर्टिफिकेट योर. राइट, तो प्लीज़ आप बढ़िया से इसको करिए, ट्राई करिए. ठीक है, आपको एक बढ़िया से देखो इस तरीके से एक शानदार सर्टिफिकेट मिल जाएगा. एक सेकंड, ओपन नहीं हुआ, मैं आपको सर्टिफिकेट भी दिखा देता हूँ. ठीक है, तो आप इसे बढ़िया से यूज़ करें. राइट, और ट्राई करें. ठीक है, तो सर्टिफिकेट कुछ इस प्रकार से आपको दिख जाएगा. ठीक है, तो ट्राई इट आउट, इट इज़ गोना बी हेल्पिंग यू. सिमिलरली, राइट, सिमिलरली इसमें काफ़ी सारे आपके लिए बॉट्स बनाए गए हैं, जैसे AI इंटरव्यू बॉट. आप प्रैक्टिस कर सकते हो, डोमेन सेलेक्ट करिए कि भैया मेरे को कौन सा डोमेन में जाना है. राइट, से फॉर एग्जांपल हम फाइनेंस वाले बंदे हैं तो हम फाइनेंस सेलेक्ट करेंगे. आपका इंटरव्यू है स्टार्ट ऑडिट का. राइट, आप स्टार्ट ऑडिट सेलेक्ट करिए. आपका फ्रेशर हो तो आप फ्रेशर सेलेक्ट करिए, और अपना CV है तो CV डाल दीजिए, नहीं है तो आप छोड़ सकते हैं. देन यू कैन क्लिक ऑन स्टार्ट. जैसे आप स्टार्ट पे क्लिक करोगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा बॉट को टू प्रिपेयर सम क्वेश्चंस, एंड दिस इज गोना बी अ वीडियो बॉट विच इज गोना बी प्रैक्टिसिंग एंड आस्किंग यू द टेक्निकल क्वेश्चंस व्हिच इज देयर. काफी शानदार लेवल पे बनाया गया है आप ही के लिए, सो दैट यू कैन गेट प्लेस टू योर ड्रीम कंपनीज व्हिच इज देयर. यू ट्राई टू कीप इट वेरी नॉमिनल. कुछ कॉइन्स आपको लॉगिन पे मिल जाएंगे, तो वहां से आप इसको यूज करके प्रैक्टिस कर सकते हो. देखिए, तो अब ये मेरा पूरा रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया है. जैसे ये होगा आप इस पर ट्राई कर सकते हो. ठीक है, माइक टेस्ट करके आप स्टार्ट कर दीजिएगा. इसके अलावा काफ़ी सारे बॉट्स आपके रेज्यूमे स्कोरर के लिए भी बनाया. आर्टिकलशिप स्कोरर, आप अपना आर्टिकलशिप यहाँ पे रेज्यूमे रिव्यू करवा सकते हो, वर्सन टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हो, और काफ़ी सारी चीज़ें प्रैक्टिस कर सकते हो. नाउ कमिंग टू बैक टू अवर डिस्कशन विच वाज देयर. राइट, तो इंटरव्यू प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रीमलाइन रहेगा बिग फोर्स में अगर आप जाएंगे, बिग सिक्स में जाएंगे, क्योंकि फर्स्ट राउंड जनरली आपका एक टेस्ट राउंड रहेगा. देन यू विल हैव एन HR राउंड, देन यू हैव अ टेक्निकल राउंड डिपेंडिंग ऑन अ डोमेन यू आर अप्लाइंग फॉर. नेक्स्ट, मूविंग फॉरवर्ड टू द कंपनसेशन. यस, देखो अब स्टाइपेंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है काफी सारे लोगों के लिए कि सर स्टाइपेंड कितना मिलेगा वो बताइए. देखो, बिग फोर्स का स्टैंडर्डाइज रहता है अप्रोक्सीमेटली 15,000 और 20,000 रहेगा. राइट, तो जनरली इट वाज गोना बी स्टार्टिंग फ्रॉम 15,000, देन सेकंड ईयर तो 20,000 रहेगा. सर जो 6 महीने का स्टडी लीव रहेगा, क्या उस पर स्टाइपेंड मिलेगा? द आंसर इज नो. नो फर्म इज गोना बी गिविंग दैट. मिड साइज फर्म का इट माइट वेरी फ्रॉम द ICA बेंचमार्क टिल हायर लेवल. कुछ अच्छी मिड साइज फर्म्स भी 11,000, 15,000, 12,000 भी देती है. अब जो लीव्स रहती है राइट ड्यूरिंग अ पीरियड, अब ICA ने तो एकदम स्टैंडर्ड कर दिया है, चाहे वो बिग साइज फर्म हो स्मॉल फर्म हो, लीव्स आपकी स्टैंडर्डाइज है. नहीं तो पहले बहुत दिक्कत होती थी, तो नाउ द लीव्स आर वेरी मच स्टैंडर्डाइज व्हिच इज देयर. तो उस चीज का टेंशन लेने का नहीं है. नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है वर्क फैक्टर. राइट, जनरली आप देखो थोड़ा सा क्या होता है कि व्हेन यू आर वर्किंग विद द बिग फोर्स एंड ऑल द फर्म्स, राइट, टॉप फर्म्स में जब भी आप काम करते हो, तो वहां पे थोड़ा सा प्रेशर रहता है, बिकॉज they have to perform well and they have expected to do it out. तो थोड़ा सा वर्क टाइमिंग, वर्क लाइफ बैलेंस आपको कम मिलेगा व्हेन यू जॉइनिंग अ बिग फोर और टॉप सी फर्म्स. बट अगर आप कोई मिड साइज फर्म या छोटी फर्म जाते हैं तो वहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा सा मिल जाएगा. ऐसा नहीं है कि देखो आप क्लासेस नहीं कर पाओगे. देखो काफी सारे आप अगर देखोगे, ऐसा नहीं है कि रैंकर्स भी बिग फोर से निकलते हैं. राइट, और ऐसा नहीं है कि मिड साइज फर्म से रैंकर नहीं निकलते, काफी सारे मिड साइज फर्म के भी रैंकर्स निकलते हैं. तो यू सी द हिस्ट्री आउट, लॉट ऑफ ऑल इंडिया रैंकर 1 आर फ्रॉम बिग फोर, लॉट ऑफ ऑल इंडिया रैंकर 1 आर फ्रॉम मिड साइज फर्म एज वेल. ऐसा कुछ नहीं है. इट्स ऑल अप टू द कैंडिडेट हाउ ही और शी इज एबल टू फाइंड आउट अ टाइम व्हिच इज देयर. नेक्स्ट, अब सर राइट चॉइस कैसे बनाए, किस बेसिस पे मैं डिसाइड करूं कि सर वेदर टू गो फॉर बिग फोर और स्मॉल फर्म और मिड साइज फर्म. सबसे पहले बड़ा ही सिंपल तरीका है. देखो सर, मुझे एक ब्रांड नेम चाहिए, मुझे कॉर्पोरेट कल्चर चाहिए, मुझे फ्यूचर में जॉब करनी है. ठीक है, तो आपके लिए बिग फोर बिग सिक्स टॉप फर्म्स बढ़िया रहेंगे. राइट, कि मुझे ग्लोबल एक्सपोजर चाहिए, टॉप बिग फोर अच्छी रहेगी. सर नहीं नहीं नहीं, मेरे को है ना सर सब कुछ सीखना है, मेरे को कल जाके प्रैक्टिस स्टार्ट करना है, और मुझे थोड़ा सा वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए, चिल चाहिए, मेरे को लाइफ में और भी चीजें करनी है. यू कैन स्टार्ट ऑफ अ मिड साइज फर्म. और इसको अच्छे तरीके से समराइज करूं कि कहां से आपको जर्नी स्टार्ट करनी है, मिड साइज फर्म या स्मॉल साइज फर्म से. तो देखिए, सबसे पहले अब जब बिग फोर में जाओगे आपको डिपार्टमेंटलाइजेशन मिलेगा. इसके साथ साथ देयर आर अदर टॉप मिड साइज फर्म्स वेयर डिपार्टमेंटलाइजेशंस आर देयर. राइट, बट वहां पे थोड़ा सा वर्क लाइफ बैलेंस चिल मिलेगा, फैमिली कल्चर मिलेगा. राइट, व्हिच इज देयर. तो आप वहां पे सोच सकते हो. अगर आपको एकदम कॉर्पोरेट कल्चर चाहिए, थोड़ा सा डिपार्टमेंटलाइजेशन चाहिए, यू कैन थिंक ऑफ अ बिग फोर व्हिच इज देयर.
क्लाइंट बेस काफी ज्यादा रहेंगे, राइट। मिड साइज फॉर्म में थोड़े से एसएमईज और छोटे क्लाइंट्स या प्राइवेट क्लाइंट्स और मिल गए लिस्टेड क्लाइंट्स, तो बढ़िया है। लर्निंग आपका डीप रहेगा, स्पेसिफिक रहेगा, दैट इज देयर, राइट। मिड साइज फॉर्म में होलिस्टिक और प्रैक्टिकल अप्रोच रहेगा। स्टाइपेंड मैंने बता दिया, वर्क लाइफ बैलेंस का भी मैंने, राइट। तो यू हैव टू डिसाइड बेस्ड ऑन दिस। नाउ इसके साथ साथ ये भी चीज बोल सकता हूँ कि देखो, मेनी टाइम्स आई हैव सीन दिस आउट, व्हेन यू स्टार्ट विद द बिग फोर, आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है। यू माइट नॉट गेट एन चांस टू मूव टू एन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, बट अगर आप मिड साइज फर्म से कर रहे हैं और देन यू थिंक ऑफ गेटिंग अ कॉर्पोरेट एक्सपोजर, यू कैन अगेन मूव टू एन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। इस पे मैंने एक डिटेल्ड पूरी सीरीज बनाई है 6 से 7 वीडियो की, विच यू कैन चेक इट ऑन द आई बटन, और मेरे यूट्यूब पे बहुत शानदार प्लेलिस्ट डली गई है हाउ टू गेट इनटू इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, वो आप चेक करना ना बोले। नाउ सर, सवाल ये आता है कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे बिग फोर में अप्लाई करना चाहिए कि नहीं। देखो, आप अप्लाई तो करो, कोई डाउट होगा, कोई दिक्कत होगा, आप कनेक्ट करिए मुझसे, राइट। विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट, हैप्पी टू गाइड यू आउट, और कोई भी क्वेरीज रहेगा, पुट इट आउट इन द कमेंट सेक्शन। नाउ one more important thing, every time we run one of the very great batch for you guys so that we can help you and prepare you well for your articleship, right? क्योंकि आर्टिकलशिप में ना काफी सारी हम गलत डिसीजन ले लेते हैं, गलत डोमेन चले जाते हैं, हमें रेफरेंसेस नहीं मिलते हैं, हमें जो मिलता है वो हम सिलेक्ट कर लेते हैं। ये गलती ना हो इसलिए आई हैव स्टार्टेड दिस आर्टिकलशिप ट्रेनिंग मास्टर क्लास। वी हैव कंप्लीटेड 9 बैचेस ऑफ द सेम, वी हैव ट्रेन्ड मोर देन 2000 आर्टिकल्स व्हिच इज देयर, राइट। ये स्पेशल डिमांड पे मैंने चालू किया बिकॉज जनरली आई हैव ट्रेन क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, तो उन्होंने कहा कि सर हमारे छोटे भाई बहनों के लिए भी कुछ करिए, तो वी हैव स्टार्टेड दिस आउट, राइट। एंड लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव गॉट प्लेस्ड इनटू द बेस्ट आर्टिकलशिप फर्म व्हिच इज देयर। क्या क्या कवर होगा देखिएगा, ये बैच लाइव भी है, अगर आप बाद में देख रहे हैं, कभी बाद में देख रहे हैं, तो इसका रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा, राइट। अभी अगर आप देख रहे हैं तो 7th 8th और 9th मार्च को रहेगा, सुबह 7 से 1, 2 दिन का बैच रखा है, 6 घंटे का रहेगा, मतलब 12 घंटे का टोटल रहेगा। एवरीथिंग नीडेड टू गेट इनटू एन आर्टिकलशिप इज गोना बी कवर्ड हियर। I'll also try to help out to get some references. Doing this masterclass or articleship masterclass does not guarantee you that you get into the big fours. Please understand this. I can only guide you, I can only train you, I can only help you get some references. It's up to you, right, how much effort you put in. But हाँ, एक चीज मैं कहता हूँ कि I'll support you till the time you get placed into the best form which is there. राइट, इसके साथ साथ आपको काफी सारे बेनिफिट्स दिख रहे हैं स्क्रीन में, ये आपको मिल जाएंगे which is there. If you are still interested, if you are interested, right, you can just check the link in the description and definitely will be happy to meet you out in the live batch as well. ठीक है, इसके अलावा राइट, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन रहेगा रिगार्डिंग अ मिड साइज फर्म और अ बिग फोर, कहां से स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें, डोंट फॉरगेट टू पुट इट आउट इन द कमेंट सेक्शन, हैप्पी टू हेल्प यू आउट। एंड डू चेक आवर वेबसाइट tools.camonk.com, इस पे आपको काफी ज्यादा चीजें मिल जाएगी, काफी अच्छे सर्टिफिकेट्स भी मिल जाएंगे, यू कैन जस्ट पुट इट आउट देयर एज वेल।